Assalamu alaikum class. In this lecture, we will read about the derivatives and their applications. Derivatives, what are the derivatives? Actually, derivatives measures the rate of change of dependent variable with respect to independent variable. It tells out the change in some dependent variable with respect to some independent variable, or in other words, derivative tell us the slope of a function at any point. It help us to determine or tell us the slope of a function at any point. Example, if we want to calculate the change of position of some moving object with respect to time, then its derivative is said to be velocity. The rate of change of position of some moving object with respect to time is called velocity. We denote it v dx by dt, which means rate of change of position of some moving object with respect to time is called velocity. Next, what is the differentiation? The process of finding a derivative is called differentiation. What is the anti-differentiation? The reverse process of derivative is called anti-differentiation. Our fundamental theorem of calculus states that anti-differentiation is also called the integration. Anti-differentiation and integration are same things. Anti-differentiation is the reverse process of the derivative, and by fundamental theorem of calculus, anti-differentiation is called the integration. Average rate of change. What is the average rate of change? Here first we read about the derivative definition, second we read out the differentiation, what is differentiation, third we read about the what is anti-differentiation or integration, and fourth, average rate of change. What is average rate of change? The ratio of difference in the function f of x is it changes, this is it, as it changes from point A to point B to the difference between A and B. It is the ratio of the function at point B, ratio of the difference of a function at point B and at point A to the ratio of the difference of point B and A. The formula is A of x. Ax means average rate of change is equal to f of b minus f of a over b minus a. For example, we want to calculate the average rate of change of this function at point A and at point B. By formula, average is f of b minus f of a over b minus a. It means value of function at point 6. When we put 6 3 the 18 plus 5 23. Value of function at point 3. When we put 3 3 the 9 plus 5 14 over b minus a, 6 minus 3, it will be 3. Then 9 by 3, answer will be 3. This is our first page of the lecture.
Next is notation for derivatives. There different authors use different notations for derivatives. According to Leibniz, the derivative can be indicated by dy by dx or df of x over dx. According to Lagrange, derivative can be denoted by f prime, or it can also be called f dash and f double dash, f prime and f double prime. According to Euler, derivative can be indicated by dxy or dx f of x. Rules for derivative. Let's discuss the rules of derivative. First rule is power rule. Suppose we have a function, if f of x x की power n, then by power rule derivative of f of x will be पावर साइड पे आ जाएगी n, x पावर में से एक कम, और जिस फंक्शन की पावर है उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. Next one is constant function rule. If f of x is equal to some constant, then derivative of constant will always be 0. Derivative of constant function will always be 0. Next is coefficient rule. What is the coefficient rule? If in some function constant is multiplied by some other function, then constant पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा. डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. हेयर इज मल्टीप्लीकेशन. सी इंटू जो वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, यू प्राइम ऑफ एक्स. नेक्स्ट वन इज सम रूल. व्हाट इज द सम रूल? इफ टू फंक्शन आर एडिड, f of x is equal to u of x plus v of x, u and v some other functions, then their derivative in derivative f prime of x will be equal to u prime of x plus v prime of x. अगर दो फंक्शन जमा हो गए हैं तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे. डिफरेंस रूल. डिफरेंस रूल में अगर हमारे पास दो फंक्शन माइनस हो गए हैं तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा. देन एफ डैश ऑफ एक्स विल बी यू प्राइम ऑफ एक्स माइनस वी प्राइम ऑफ एक्स. प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल में इफ़ एफ ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो गए हैं तो देन बाय प्रोडक्ट रूल एफ डैश ऑफ एक्स, एफ का डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रहेगा यू ऑफ एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव लेंगे वी प्राइम ऑफ एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन वैसे ही रहेगा और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे यू प्राइम ऑफ एक्स. क्वेश्चन रूल. क्वेश्चन रूल में अगर हमारे पास दो फंक्शंस डिवाइड हो गए हैं तो उनका अगर डेरिवेटिव लेना है तो बाय क्वेश्चन रूल नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लेंगे और ऊपर वाला ऊपर वाली चीज़ को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली को डिनोमिनेटर बोलते हैं फ्रैक्शन में. तो फ्रैक्शन में जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर लेंगे और न्यूमरेटर में क्या करेंगे, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही रहेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे यू प्राइम ऑफ एक्स माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही रहेगा, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे वी प्राइम ऑफ एक्स. नेक्स्ट वन इज चेन रूल. व्हाट इज चेन रूल? चेन रूल में हमारे पास अगर y के सामने दो फंक्शन आ जाते हैं f इंटू जी ऑफ एक्स, आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है तो आपने यहाँ पे दो काम करने हैं. फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वाला जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स उसे u पुट कर लेना है. तो आपके पास ये वाला जो फंक्शन है y f जी ऑफ एक्स को आपने u पुट कर लिया है तो आप चेन रूल अप्लाई करेंगे. चेन रूल क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, इसमें एक थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व होता है जिससे आप डिवाइड भी कर देंगे मल्टीप्लाई भी कर देंगे. y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u और फिर u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. आपका आंसर आ जाएगा इसमें डी वाई बाई डी एक्स. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब है अगर आपने एक दफ़ा फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया है तो आप सेकंड टाइम्स भी जो आंसर आता है उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, थर्ड टाइम भी ले सकते हैं, फोर्थ टाइम भी ले सकते हैं. ये सारे जो डेरिवेटिव्स हैं ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहलाते हैं. इन्हें आप
फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को एफ प्राइम से ज़ाहिर करते हैं, सेकंड टाइम को एफ डबल प्राइम से, थर्ड टाइम को एफ ट्रिपल प्राइम से, फोर्थ टाइम को एफ फोर्थ प्राइम से, फिफ्थ टाइम को एफ फाइव प्राइम से। और डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट अदर नोटेशंस यूज़ किए हैं जो कि मैंने आपको पीपीटी सेंड की है, उसमें मेंशन है। पार्शियल डेरिवेटिव, व्हाट आर द पार्शियल डेरिवेटिव? पार्शियल डेरिवेटिव में अगर आपके पास फंक्शन जो है उसमें दो वेरिएबल आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, आपके पास फंक्शन जो है उसमें आपके पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स वाई, दो वेरिएबल आ जाते हैं, तो आप उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है तो आप इंडिकेट करेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इंटू एक्स वाई, और आपने एफ एक्स वाई को जेड लेट किया हुआ है तो पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स आएगा। इसी तरह अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना है तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, आपके पास एक्स वाई आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स वाई को जेड रिलेट किया तो पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई भी लिख सकते हैं। तो ये जो है अगर आपके पास फंक्शन में वेरिएबल एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो आप हर वेरिएबल के रिस्पेक्ट अलग अलग डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। तो ये जो आप प्रोसेस है ये पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है। नेक्स्ट, इन डेरिवेटिव व्हाट इज़ कनकेव अप और कनकेव डाउन? वी ऑलरेडी डिस्कस दैट डेरिवेटिव टेल अस अबाउट द स्लोप ऑफ अ फंक्शन। तो कनकेव अप का मतलब है कि अगर स्लोप इंक्रीज़ हो रही है, फंक्शन की स्लोप इंक्रीज़ हो रही है, या इन अदर वर्ड्स आप फंक्शन का सेकंड टाइम डेरिवेटिव्स ले तो वो पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स फंक्शन कनकेव अप है, फंक्शन की जो स्लोप है वो ऊपर को जा रही है। कनकेव डाउन का क्या मतलब है? फंक्शन की स्लोप जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही है। इस केस में अगर आप फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो इट मीन्स नेगेटिव आएगा, क्योंकि ज़ीरो से लेस जितने भी नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो। कनकेव अप में अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे किसी पॉजिटिव नंबर पे तो वो पॉजिटिव आएगा, और कनकेव डाउन में सेकंड डेरिवेटिव लेंगे किसी नंबर पे, किसी नेगेटिव नंबर पे, तो वो नेगेटिव आएगा। There are some other formulas of the derivative of trigonometric function sin x prime। sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है, x का दोबारा लेना है, x का हमेशा डेरिवेटिव 1 होता है। cos x का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन x होता है। sin x का जो रेसिप्रोकल है उसे आप 1/sin x और कोसिकन x भी बोल सकते हो। कोसिकन x का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकन x इंटू कोट एक्स होता है, अगेन एक्स का दोबारा लेना है जो कि 1 होता है। इसी तरह कोज एक्स का जो रेसिप्रोकल है वो सिकन एक्स होता है। सिकन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो सिकन एक्स इंटू टेन एक्स होता है। टेन एक्स प्राइम, टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 कोस स्क्वायर एक्स होगा, और इसे आप सिकन स्क्वायर एक्स भी बोल सकते हैं। अगेन हर केस में एक्स का दोबारा लेना है जो कि 1 होगा। कोट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा कोस एक्स प्राइम, कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स होगा, और एक्स का अगेन आपने दोबारा लेना है। ये डेरिवेटिव्स के कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए यूज़ कर सकते हैं। आगे लॉगरिथम फंक्शंस के डेरिवेटिव है, ये लॉगरिथम ये सम लॉगरिथमेटिक फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव्स अगर आपके पास फंक्शन log a की पावर x हो उसका डेरिवेटिव लेना है तो 1/x आएगा, और साथ में ln ऑफ ये जो बेस है एक कोई कांस्टेंट होगी ln ऑफ a आ जाएगा। सेकंड फार्मूला है ln ऑफ x का जो प्राइम है, ln ऑफ x का डेरिवेटिव जो होगा वो 1/ln ऑफ a का डेरिवेटिव 1/a होगा। अगर ln ऑफ x है तो 1/x आ जाएगा। a की पावर x प्राइम, a की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो a की पावर x ही होगा, साथ में ln ऑफ a आएगा। a कोई कांस्टेंट है ये जो यहाँ पे मेंशन होगी। e की पावर x का जो डेरिवेटिव है e की पावर x ही होगा, हर केस में x का जो है अगेन नेक्स्ट लेना है, x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। ये डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो कि हमने डिस्कस की हैं इस लेक्चर में।
अगर आपको इसकी एग्जांपल जो मैंने आपको पीपीटी सेंड किया उसमें सॉल्व है, अगर आपको कहीं पर कोई मसला कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, पहले आप ये डिस्कस कर ले, रीड कर ले, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेंड करूँगी, अपने एज अ असाइनमेंट वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू।